welcome you all to yet another session of SAS Visual Analytics. And today we are going to learn about how to create various objects in Visual Analytics. तो चलो शुरुआत करते हैं. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं. Data visualization. So Visual Analytics is majorly designed for data visualization. Now, what is data visualization? It is nothing but representing the information in visual formats. Okay, means it uses lot of maps, graph, then other information objects. Visualization is very important for human brain as it can understand the data very well with help of pictures. And as we already know, data visualization is one of the key steps in entire data science. So it is one of the very important field for you. So let us understand data loading for analysis. Now, as I already said, Visual Analytics have a server whose name is Laser Server, and the data is loaded into server with help of various sources. So there are many sources we can use for our laser servers. Okay. For an example, we can have majority of the local servers, which includes the comma separated files, SAS datasets, or some other Excel spreadsheets we can use as a local datasets. Even we can use server as a source of data like Oracle server, Hadoop server, Progress, PostgreSQL, Impala, and others. As well as we can also use the social media like Twitter, Facebook, Google Analytics data as a visualization data. So there are multiple servers available for importing data into Visual Analytics. Okay. So over here, I'm just briefly writing three types of sources. One is local, which includes CSV, Excel files and all. Then server-based data, database server, Oracle and etc. And the social media data, social data, Twitter, Facebook, Google Analytics and something like that. Now, when we are acquiring data from such sources, the first step is investigation. Investigate the data. Now, investigating means identifying the table size, then table type, type of distribution, etc., etc. Then if we require some data items to be calculated like average, minimum, maximum, such type of data items can be created while acquiring the data. At certain places, we need to modify data properties, like we may modify the data type or the size of data. Size in the sense length of data. Okay. Now, how to load data into Laser Server? The first way, we can use SAS environment. Second way is SAS Studio. Third way is Enterprise Guide. Fourth way through Report Builder. And fifth way through Visual Data Builder. So we have many ways to upload data into Laser Server. In SAS Visual Analytics, we are going to understand these two different ways, which are visual analytic approach towards data upload. Okay, then
data investigation, what it includes? Investigation includes table content will be verified. What is the size of data is verified. What is table distribution, like whether it accepts normal data or whether it is not. Okay, so that investigation for analysis is done in this step. After that, this particular category shows you data. Now here there is three types of data. One is category, in which there are some distinct values are available in a column. मतलब ये कॉलम में देखो 5 टाइप के वैल्यूज है, ये कॉलम में सिर्फ 3 टाइप के वैल्यूज है, ये कॉलम में 7 टाइप्स के वैल्यूज है, मतलब ये कैटेगोरिकल डेटा है. मेजर मतलब these are the numeric values. जब डेटा न्यूमेरिक होता है and it can be measured, so that is called as measure. इनके अलावा there are something called as aggregated measures. एग्रीगेटेड मेजर का भी एक ऐसा ही सेट आएगा, और एक डेटा टाइप है कॉल्ड एज जियोग्राफी. बिकॉज अगर आप जियो मैप नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने को जियोग्राफी जरूरी होती है. आगे लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बीए, दैट इज टेबल ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे 2 टाइप के टेबल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं. एक तो जो सिंपल टेबल दिखाता है आपको विथ ऑल कॉलम्स, सिंपल टेबुलर डेटा. ओके, इट लिस्ट द समरी of the data in your data source, entire all the columns will be there. दूसरा टाइप है क्रॉस टेबल, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल डिजाइन कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी टेबल करेक्ट है. उसके बाद कुछ एडवांस चार्ट ऑब्जेक्ट्स भी अपने पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सिंपल बार चार्ट, जिसमें आप एक मेजर लेते हो और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हो. Similarly, we have a pie chart, one of the again very popular type of data chart, which is used to represent one measure or more measures. Whole to part relationship ये ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है. इसके अलावा एडवांस चार्ट्स में यहाँ पे जियो चार्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है जिसका नाम है जियोग्राफी. अगर जियोग्राफी नाम का डेटा के पास है तो आप वर्ल्ड वाइड उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो. सो दिस इज अ जियो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस चार्ट. वर्ड क्लाउड, नाउअडेज अगेन इट इज गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. टेक्स्ट एनालिटिक्स इज द मेन फील्ड फॉर विच इट इज यूज्ड. हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि डेटा ये वर्ड कितनी बार आया अपने डेटाबेस में. जितनी बार आएगा उतना उसका साइज बढ़ते जाएगा, जितनी कम बार आएगा उतना ये डल रहेगा और उतना उसका साइज भी छोटा रहेगा. तो दिस इज अगेन वेरी पॉपुलर ग्राफ, वर्ड क्लाउड. अभी आप बोलोगे सर इतने सारे ग्राफ्स हैं, अराउंड 28 ग्राफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन विजुअल एनालिटिक्स. अभी इनमें से कौन सा ग्राफ कब यूज करना है, इनके लिए यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक दिया. अगर एक मेजर होगा तो वी कैन गो विथ हिस्टोग्राम. वन कैटेगरी एंड मेनी मेजर्स वी कैन गो विथ बार चार्ट. अगर एक डेट नाम का डेटा टाइप है, डेट और डेट टाइम, एंड देयर आर सम मेजर्स, तो हम लोग टाइम सीरीज प्लॉट के लिए जाते हैं. तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट बना के रखना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन फॉर ऑल द इंटरव्यूज. एंड इफ यू लर्न एनी एनालिटिकल टूल you must know this chart. Okay, so now the last part of today's theory session is arranging object. Now on the VA report you can see there is chart number 1, 2, 3 and bottom there is one table which is 4th. So now on a single table we have arranged multiple chart. We can arrange
the multiple charts on a single table on a same screen, और इसी को आपने नाम दिया है डैशबोर्ड। इसे नाम क्या होगा बेटा? इट विल बी नेम्ड एज डैशबोर्ड। Okay, so nicely designed dashboard is always an industry requirement. तो हम लोग ऐसे पूरे ग्राफ के ऑब्जेक्ट्स को एक पेज पे अरेंज करेंगे और इसी को नाम देंगे हम लोग डैशबोर्ड। तो यहाँ तक मैंने आज आपको सारे ऑब्जेक्ट्स, जो 28 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट का ब्रीफिंग दे दिया है और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में स्टडी करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। ओके, तो आज हमने देखा है डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है, टेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वीए चार्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, और हम लोग वीए का रिपोर्ट लेआउट कैसे सेट करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये आपके सामने है सास का इंटरफेस, जिसे हमने लास्ट टाइम गो थ्रू किया था, जिसमें आपने सीखा था कि जो डेटा होता है वो यहाँ से आएगा। मैंने ऑलरेडी एक डेटा आइटम सिलेक्ट करके रखा है जिसका नाम है ऑर्डर 43 के। ओके, और हम लोग इसी पे अपना आज का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टेबल ऑब्जेक्ट है, ग्राफ ऑब्जेक्ट्स है, और कुछ कंट्रोल्स है, एनालिटिकल ऑब्जेक्ट्स है, कंटेनर्स है। तो हम लोग एक एक करके ये देखेंगे। और लास्ट टाइम जो ऑप्शन हमने अच्छे से स्टडी किया था, दैट वाज सजेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे SAS आपको अपने आप पूरा का पूरा ग्राफ देखो सजेस्ट कर रहा है, तो सिंपली हम लोग इसे ड्रैग ड्रॉप करके ये ग्राफ यूज कर सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन, जिसे हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ रिमार्केशन लाइन ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हम लोग देखेंगे अपना पहला टास्क, जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे एक सिंपल लिस्ट टेबल। आज हम लोग सारे के सारे काम मैन्युअली करेंगे। हम लोग डायरेक्टली डेटा आइटम को उठा के मैंने नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डेटा आइटम को यहाँ पे डाल दूंगा, देखो मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 पे हूँ, and I'll just shift this page, पेज नंबर 2। अगर डेटा को मैंने डायरेक्टली यहाँ से उठा के डाल दिया, फैसिलिटी यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो ये ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटो चार्ट ऑप्शन। ये चार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑटो चार्ट ऑप्शन। ये चार्ट का नाम होगा ऑटो चार्ट ऑप्शन। तो ये पर्टिकुलर फील्ड पे हम लोगों ने सीखा कि ऑटो चार्ट कैसे दिखाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑटो चार्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसे टाइटल देना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ काम यहाँ पे होने पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ऑटो चार्ट मैंने इसे नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ऑटो चार्ट था। पेज 1 पे हम लोग देख रहे हैं मैनुअल चार्ट्स। मैनुअल चार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहला ऑप्शन, जो है लिस्ट टेबल। मैंने लिस्ट टेबल को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दिया, स्टेप नंबर 1। उसके बाद अभी ये डेटा, इसमें कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। तो अभी हम लोगों को इसमें डेटा डालना होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग डेटा डाल देंगे, फैसिलिटी। ओके, ये ऑटो चार्ट हो गया, ये नहीं चाहिए अपने को, तो आई विल डिलीट इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट में जाके लिस्ट टेबल डाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट टेबल दिखना चाहिए साइड में। लिस्ट टेबल ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसमें ये पूछ रहा है कौन सा कॉलम चाहिए, तो मुझे जितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ओके, देखो ये सारे कॉलम आ गए। पहले वो कॉलम दिखाएगा और उसके बाद वो उसमें डेटा भी पॉपुलेट करवाएगा। ठीक है, इसका साइज आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया, आप साइज एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। अभी आप बोलोगे कि सर अगर मुझे इसमें सारे ऑर्डर्स नहीं दिखाने, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के ऑर्डर दिखाने हैं, तो मैं क्या करूं? तो चलो इसमें हम लोग सीखते हैं एक फिल्टर। तो एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करेंगे हम लोग कंट्री पे, ठीक है, या फिर हम लोग ट्रांजैक्शन ईयर पे फिल्टर अप्लाई करते हैं।
and only I will show the data of 2010. Only data of 2010 दिखाना. ओके, और एक फिल्टर ऐड किया जिसमें मैं सिर्फ डेटा दिखाऊंगा आपको स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का. ओके, तो लिखते हैं फैकल्टी कॉन्टिनेंट जो 6 है. ठीक है, इनमें से मुझे सिर्फ देखना है यूरोप का डेटा. ठीक है, सिर्फ यूरोप का डेटा चाहिए मुझे. ओके, तो ये हो गया मेरा दूसरा फिल्टर. मैंने 2 फिल्टर लगा दिए हैं. देखो विजुअल फिल्टर्स है, आप यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हो. ऐसे विजुअल है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है, विजुअल है. अगर आपको एस ऐड करना है सिर्फ एस लिख दो, ओसी लिख दो. इसे बोलते हैं विजुअल फिल्टर्स. यहाँ पे फिल्टर्स भी विजुअल है, अनलाइक एसक्यूएल एंड ऑल जहां पे हम लोग को बहुत बड़ी लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया अपना पहला ऑब्जेक्ट स्टडी जिसका नाम था लिस्ट टेबल. ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसे हम लोग नाम दे देंगे. ऑप्शंस में जाते हैं नाम देने के लिए. जनरल पेज 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा बेटा, लिस्ट टेबल. बराबर है, एंटर कर दिया. देखो लिस्ट टेबल बन गया. अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग अगला ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्रॉस टेबल. क्रॉस टेबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है. क्रॉस टेबुलेशन किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने उसको नाम भी दे दिया क्रॉस पैक. ठीक है, में जाके आपको उसको नाम देना पड़ता है. ठीक है, पेज 3 में क्लिक करना. वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था, अभी ये अपना पेज सिलेक्ट हुआ है. पेज पे क्लिक करना पड़ता है. फिर आप आके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना. देखो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये पेज है, और यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है. क्रॉस टैब ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, क्रॉस टेब्यूलेशन. ठीक है, यहाँ पे कस्टम टाइटल किया मैंने जिसमें मैं ये क्रॉस टेबुलेशन नाम लिख दूंगा. देखो बेटा नाम आ जाएगा. अगर आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी, तो हमने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया. ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ वी विल गो टू द कोर पार्ट ऑफ इट व्हिच इज रोल. ठीक है, अभी कॉलम में कौन सा टाइप डालना है आपको वो पहले लिखोगे. तो कॉलम में मैं डाल रहा हूं कॉन्टिनेंट्स. ओके, कॉलम्स में देखो कॉन्टिनेंट्स आ गए, और अभी मुझे रो में डालने हैं ईयर्स. ठीक है, ट्रांजैक्शन ईयर डाला मैंने. देखो 2010 में अफ्रीका में इतना ट्रांजैक्शन हुआ, करेक्ट है. 2011 में ऑस्ट्रेलिया में 180 ट्रांजैक्शंस हुआ, एंड सो ऑन. सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस टेबुलेशन. और जैसे कि मैंने आपको बोला था, स्टाइल में भी यहाँ पे बहुत कुछ है. अगर आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, बॉर्डर डालना है, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. ठीक है, लेआउट में भी चेंज कर सकते हो आप. ठीक है, इफ यू वांट टू. तो यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया. ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में अगर आपको अलग बॉर्डर का स्टाइल चाहिए तो वो डाल सकते हो. ठीक है, 4 का बॉर्डर डाला. देखो बॉर्डर दिख रहा है आपको एकदम बाहर. ठीक है, पैडिंग में उन्होंने कुछ ऑप्शन दिया है. पैडिंग चेंज करके देखो. देखो ये ट्राई जितना करोगे ना उतना आपको धीरे धीरे पता चलेगा. पैडिंग मतलब ये डिफरेंस. ठीक है, तो कितना छोटा टेबल चाहिए आपको अंदर, मतलब ये प्रॉपर मार्जिन्स में बैठना चाहिए. ठीक है, फॉर दैट वी कैन यूज इट. ठीक है, क्रॉस टेबुलेशन को बॉर्डर चाहिए, उसके जो कुछ है, मतलब यहाँ पे आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन डिफाइन इट ओवर हियर. और यहाँ पे मैंने कर दिया अभी एक क्रॉस टेबल तैयार. ठीक है,
तो अभी हम लोग और अगले ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अपने टेबल ऑब्जेक्ट सारे खत्म हो गए, अभी हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ के ऑब्जेक्ट्स। अभी ग्राफ के ऑब्जेक्ट जब आप स्टडी करते हो तो आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन टू सम टॉपिक्स, ठीक है, जहां में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, कि जहां पे मैं आपको वेरियस टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। अगर चार्ट टाइप सिलेक्ट करने के लिए दिस इज द टेबल विच इज यूज्ड। अब अगर मेरे पास सिंगल मेजर है तो मैं यूज करूंगा हिस्टोग्राम। अगर मेरे पास एक कैटेगरी है जैसे कि कॉन्टिनेंट और एक नंबर है जैसे कि सेल्स, तो मैं बार चार्ट यूज करूंगा। अगर डेट टाइम कैटेगरी है मेरे पास एंड मेजर तो टाइम सीरीज प्लॉट, फिर लिस्ट टेबल कब यूज करना है, जियो मैप कभी यूज करना है, बार चार्ट कब यूज करना है, क्रॉस टेबुलेशन कब यूज करना है, हीट मैप कब यूज करना है और कोरिलेशन मैट्रिक्स कब यूज होता है। ये पूरा का पूरा मैंने ये एक टेबल में लिख लिया है। इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when it comes, because हर बार नहीं तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर मुझे विजुअलाइजेशन बनाना है तो कौन सा चार्ट बनाऊं मैं, ये चार्ट अच्छा है कि वो चार्ट अच्छा। तो इसके लिए एक रिकमेंडेशन is already given by SAS and these are the list of recommendations given by SAS। देखो जब आप ऑटो चार्ट बनाते हो ना तो यही टेबल यूज किया जाता है एंड बेस्ड ऑन विच आप जब कोई भी मेजर ड्रैग ड्रॉप करते हो तो कौन सा ग्राफ बनेगा, इसका एक पर्टिकुलर अल्गोरिदम is defined by the SAS Institute। तो यही वो पर्टिकुलर स्लाइड है। तो चलो अपने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले मैंने क्या किया, बार चार्ट को यहां से ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ड्रैग ड्रॉप करते ही उसने अपने आप एक चार्ट बनाना चालू कर दिया। अभी आपको देखना है कि ये चार्ट कौन सा है, इज इट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आप इसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑटो चार्ट आ गया तो मुझे ऑटो चार्ट में नहीं जाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट डिलीट दिस चार्ट। डिलीट कर दिया ऑटो चार्ट को। अभी मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, बार चार्ट को उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओके। ऐसा एक ब्लैंक चार्ट तैयार हो जाएगा। ऑटो चार्ट पे क्लिक करो, जनरल में जाके मैं यहाँ पे नाम क्या डालूंगा बेटा, ये ऑटो चार्ट नहीं है, ये मेरे लिए है बार चार्ट, ये मेरे लिए है बार चार्ट। अभी मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा बेटा, अंदर ऑब्जेक्ट है, अंदर क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक होगा और अभी ऑब्जेक्ट को नाम दोगे आप बार ऑफ सेल्स डेटा, ठीक है। एंटर किया, देखो नाम आ गया यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो, नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रूल्स। अभी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बार चार्ट कब यूज होता है, जब एक कैटेगरी और एक मेजर, एक कैटेगरी और एक मेजर जो कंपलसरी है, देखो दिख रहा है आपको। चलो कैटेगरी ऐड करेंगे, कॉन्टिनेंट, देखो कॉन्टिनेंट ऐड हो गए। मेजर ऐड अपने आप कर लिया उसने फ्रीक्वेंसी, पर अगर मुझे कुछ दूसरा ऐड करना है तो आई कैन डू इट, ऑर्डर टोटल, ओके। और मुझे फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो मैं ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। रिमूव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो, हॉरिजॉन्टल नहीं मुझे वर्टिकल चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बोला था कि आप बार में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन में आप वर्टिकल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको बेसलाइन दिखाना है मतलब बेंचमार्क,
तो आप दिखा सकते हो, चलो 2.5 इज माय बेंचमार्क, 2.5, ठीक है। तो ये बेंचमार्क है, ये ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग को उसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बेंचमार्क पे। न्यू रेफरेंस लाइन, लेबल एवरेज सेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे एवरेज सेल्स वैल्यू है 7500। अगर अपने को नहीं चाहिए इतना बड़ा वैल्यू तो 5 पे लाते हैं। चलो, ये आ गया मेरा रेफरेंस लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, उनका फॉन्ट, स्टाइल, एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि आप रोल्स क्या डालते हो। अभी रोल्स में देखो ग्रुपिंग करना भी पॉसिबल है, यू कैन ग्रुप देम। ओके, सपोज मैंने ट्रांजैक्शन ईयर से ग्रुप किया, तो देखो ट्रांजैक्शन ईयर वाइज ग्रुप्स है अभी मेरे पास। उसके बाद मैंने आपको लेटाइसेस भी सिखाया था, अगर कॉलम्स को लेटाइस करना है, ठीक है, तो दैट कैन आल्सो बी डन, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बिकॉज अपने पास छोटा मेजर कोई नहीं है अभी। इफ आई गो बाय कंट्री रेट देन इट विल बी वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस, ठीक है, इसलिए मैं ये लेटाइसेस रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो लेटाइस कर सकते हो, कॉलम लेटाइस भी आता है, रो लेटाइस भी आता है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन बार चार्ट। तो अभी हमने स्टडी कर लिया अपना और एक फीचर कॉल्ड एज बार चार्ट। होप सो यू आर वेरी क्लियर विद इट। ओके, अभी हम लोग देखेंगे अपना और एक ग्राफ जो रहेगा मे बी हीट मैप। ज्यादा मेजर्स जब आते हैं तो हम लोग बनाते हैं हीट मैप। तो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हीट मैप। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करते एक नया पेज आ गया। अभी पहले तो ये पेज को नाम दो बेटा, ऑप्शंस में जाके हीट आ गया नाम बेटा, गुड। इसके बाद अभी हम लोग इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड कर दे, कितने सारे चार्ट्स हैं, मैं आपको लिमिटेड दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग स्टडी करने वाले हैं। हीट मैप आ गया लेकिन उसको अभी तक कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। क्लिक करो, सिंगल क्लिक, ऑब्जेक्ट पे जाके उसे नाम दो मैप दे। उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आगे आके और कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रोल्स। इसमें एक्सिस आइटम और कलर आइटम, ये दो आइटम क्रिया ऐड करने काफी जरूरी है। अभी एक्सिस पे मैंने लिखा है फैकल्टी कॉन्टिनेंट्स, ओके, और कलर में मैंने लिखा है, मेजर चाहिए कलर के लिए, इट इज टेकन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फैकल्टी कॉन्टिनेंट और हम लोग ट्रांजैक्शन ईयर्स लेंगे यहाँ पे, ओके। देखो बेटा दो एक्सिस है ना अपने, तो अपने को दो एक्सिस आइटम्स चाहिए, एक तो कंट्री डाला और एक तो ईयर डाला, और उनके बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी को अपना कलर डिसाइडिंग फैक्टर बनाया है। मतलब ये जो आपको एनए दिख रहा है ना बेटा, इनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे नीचे डिफाइंड है, ये कलर लाइट कलर मतलब क्या और डार्क कलर मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी आइटम का जो काउंट है दैट इज आल्सो नाइसली एक्सप्लेन्ड। तो whenever we have more than one categories, more than one data items, we can use the heat map also. अभी हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि और एक डायमेंशन ऐड करें, क्या होता है देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पे और एक डायमेंशन आ गया, फैकल्टी कंट्री रजिस्ट्रेशन। तो काफी छोटा छोटा ग्राफ हो गया, एंड अगेन सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इज शोन, ठीक है, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी गुड। ये ग्राफ जो है ये अंडरस्टैंडिंग है एंड वी कैन यूज इट। तो हमने हीट मैप यूज कर लिया, और अभी हम लोग देखेंगे जियोग्राफी मैप, दैट इज जियो चार्ट। तो जियो चार्ट क्रिएट करने के लिए स्पेशल
स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप होना जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफी आइटम नहीं है। ओके, वी हैव ओनली कैटेगरी मेजर्स एंड एग्रीगेटेड मेजर्स। तो अपने को एक ज्योग्राफी का आइटम बनाना पड़ेगा। तो चलो ये ज्योग्राफी चार्ट बना लेते हैं। ज्योग्राफी आइटम, ओके, स्टेट जियोग्राफ, स्टेट ज्योग्राफी बनाएंगे हम लोग, इसका नाम है ये, ठीक है। ये बेस्ड होगा फैसिलिटी सिटी, ओके। और हम लोग यहाँ पे लेंगे फैसिलिटी सिटी का कस्टम कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है फैसिलिटी सिटी का लैटिट्यूड और फैसिलिटी सिटी का लॉन्जिट्यूड, ओके, जिससे कि मैंने ये ज्योग्राफी आइटम बना लिया है। अभी आप देख सकते हो कि अपने पास एक ज्योग्राफी भी आ गया। मेरे पास पहले कैटेगरी था, मेजर था, एग्रीगेटेड मेजर था, लेकिन ज्योग्राफी नहीं था। अभी मैंने ये एक ज्योग्राफी बना दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट्स में, यहां से मैं जियो चार्ट ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा, जियो मैप आ गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी ऐड करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी दिख रहा है। अगर मैंने ज्योग्राफी बनाया नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, ओके। सो यहाँ पे जो साइज है उसने ऑटोमेटिकली उसका फ्रीक्वेंसी, उसका साइज ले लिया, और यहाँ पे एक बढ़िया सा जियोग्राफ के सामने तैयार है। अगर आपको इसको रीनेम करना होगा तो सिर्फ ये ग्राफ पे क्लिक कर सकते हो, ऑप्शंस, कस्टम टाइटल, जियो मैप डेमो, तो यहाँ पे ग्राफ का नाम आ गया है। अगर आपको पेज को रीनेम करना है तो पेज पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो जियो चार्ट डेमो, और वो आपका यहाँ पे नाम चेंज कर देगा। तो हमने यहाँ पे रोल्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हो आप, ठीक है। हमने अभी रोल के ऑप्शंस देख लिए थे, ठीक है। एक्शंस है, ओके। यहाँ पे कलर चेंज करना भी हाईली पॉसिबल है, ठीक है। पैडिंग चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो these all things are highly possible over here। तो ये था आपका जियो चार्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। तो और एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो चलो देखते हैं कौन सा ग्राफ हम लोग लेंगे। तो चलो लेट अस टेक वन मोर ग्राफ जो आपको काफी पसंद है, दैट इज पाई चार्ट। बहुत फेमस ग्राफ है, ठीक है। तो पेज नंबर 5 को मैंने नाम दिया है पाई चार्ट, ओके। अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है उसमें। अभी आप उसे नाम दोगे, क्या नाम दोगे? फॉर पाई चार्ट डेमो, सिंपल नेम, एंटर किया, देखो नाम आ गया वहां पे, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभी आप यहाँ पे कैटेगरी क्या असाइन करते हैं, ठीक है। कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे मैंने किया फैकल्टी कॉन्टिनेंट ऐड, 43 के कॉन्टिनेंट है, इतने सारे कॉन्टिनेंट अपने को दिखाई दे रहा है, और उसका मेजर है फ्रीक्वेंसी। आप इसे ग्रुप भी कर सकते हो बेस्ड ऑन ईयर। देखो दो पैरामीटर में कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं जिससे आपको उसका आइडिया आ जाए। देखो 2010 का फैकल्टी कॉन्टिनेंट क्या था, उसके बाद 11 का, 12 का, ऐसे मतलब आपको एक एक करके उन्होंने कैसे वो बढ़ रहा है वो पता चल रहा है अपने को, ठीक है। सो दिस इज द पाई चार्ट। तो हमने ऑल इन ऑल 2 टेबल के ऑब्जेक्ट्स देखे, 3 चार्ट के ऑब्जेक्ट्स देखे, और हमने उनके साथ प्ले ऑफ किया
जिससे कि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमने ग्राफ देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ चार्ट्स। अभी आपका आज का असाइनमेंट होगा, आप इन ऑब्जेक्ट में जाके किसी भी 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, उनका ऐसा ग्राफ बनाओगे और ये ग्राफ का फोटो और उसके रोल्स, ये देखो रोल दिख रहा है कि नहीं बाजू में, डेटा रोल्स, ये रोल्स मुझे भेजोगे। बिकॉज रोल्स अगर आप भेजोगे ना तो मुझे 100% पता चलेगा कि आपका डायग्राम करेक्ट है कि रॉन्ग है, या फिर आपने कुछ भी गलत डायग्राम दिखा दिया है कोई गूगल पे इंटरनेट करके। तो ये सब मुझे पता चल जाएगा अगर आपने आपके डेटा रोल्स मुझे भेज दिया। तो हम लोग आज इसी डेटा सेट पे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग स्कैटर प्लॉट, शेड्यूल चार्ट, स्टेप प्लॉट, टाइम सीरीज प्लॉट, ऐसे कोई भी 4 प्लॉट्स हम लोग आज विजुअल एनालिटिक्स में प्लॉट करेंगे विथ हेल्प ऑफ अंडरलाइन डेटा। ऑर्डर्स का डेटा है मेरे पास, जिसे हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। और आज का असाइनमेंट आप मेरे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करके भेजोगे। I will observe the comment section and I will give you reply. The basic intention of giving assignment is very simple, to improve your capability and your level of practice you are doing in visual analytics. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर बनोगे। जैसे आपने सजेस्ट ग्राफ का प्रैक्टिस किया, आज आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी चार ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे। इट कैन बी हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, निडल प्लॉट। सीखो, देखो जितना सीखोगे उतना वो अपने लिए फायदेमंद होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं विजुअल एनालिटिक्स के अगले सेशन में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि डेटा प्रिपेयर कैसे किया जाता है, डेटा में कॉलम्स कैसे ऐड किए जाते हैं, और अगला पार्ट। तो चलो फ्रेंड्स, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।